Assalamu alaikum students. Today we are going to start the next paper 1 to October November 2024. So starting from the very first question. Normally बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ग्राफ में लैग कर रहे होते हैं ग्राफ्स में आइदर ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों या क्वाड्रेटिक्स ग्राफ हों या लीनियर ग्राफ्स हों या स्पेशली रेसिप्रोकल फंक्शंस के जो ग्राफ्स होते हैं रैशनल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं जो पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रही होती हैं तो ग्राफ्स वाला जो पोर्शन होता है यू हैव टू पे अटेंशन ऑन देम स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which is from trigonometry. So the students, the diagram shows the curve with equation y is equal to a times sine bx plus c, where x lies between 0 till 2 pi, a, b, c are constants. State the values of a, b and c. So first of all, students, अगर आप देखें, what is your mean position? What is your mean position? This is the line, horizontal line, which divides the whole graph into two equal parts. Okay, तो यहाँ पे जो a होता है, a is amplitude and amplitude is this height. Okay, these lengths. So you can easily calculate that from if this is the mean position or the half line. So from here 1 2 3 4, this is the 4 height, or you can say the expansion of graph. The expansion of graph varies from this point to this point. अब ये 8 है, ठीक है. So amplitude will be 8 over 2, which is 4. So a is going to be 8 over 2. You don't need to give explanations, ठीक है. State the values by looking at the graph. So a is directly is equal to 4, which is, let me write amplitude. Okay. Next we have b. How you will target this b? As we students know that the graph of sine function is this complete cycle. This is the one loop or one cycle, you can say. Okay, so one complete cycle of sine is completed from 0 till pi. Okay, तो जो ये वाला फंक्शन है, its period is pi, right? Its period is pi. And how to find the period of such functions? It's very easy. Period is equals to 2 pi divided by this constant. Okay, this coefficient you will divide it by 2 pi. This is the formula for period, right? So formula for period is 2 pi or 360 divided by the coefficient of x in the equation. So now what is the period from graph? If I look at the graph, as I said that this is the complete loop of sine function, complete one cycle of sine function, and it is completed within the domain 0 till pi. So it's the graph period is actually pi. So if you equate it, pi will be cancelled out and you will get b is equals to 2, right? And how you will target c now? C is quite easy. Look at this mean position. Like you can find c in many ways. एक तो तरीका ये है कि just look at this point. This is the mean position and mean position is shifted from x-axis 1 2 3 units up. Okay, तो जो x-axis था उससे 3 units up shift हुआ है graph, right? तो c is going to be 3. Basically is the vertical translation of the original graph of sine, right? So c is directly can be written 3. So a is 4, b is 2 and c is going to be 3. Next we have, for these values of a, b and c, determine the number of solutions in the interval for each of the following equations. ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं. अब वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं. एक तो ये उसने ग्राफ दिया हुआ है आपको. Let me write the values of a, b, c in this curve. So 4 sine b was 2x, b is 2, 4 sine 2x plus 3 is equals to minus x plus 7, right? 7 minus x can be written as minus x plus 7. And now what is minus x plus 7?
Let me draw the graph of minus x plus 7 on this graph so that we can see that at how many number of points the line and the graph will intersect. So that will be the number of solutions of that the given equation, right? So if there is y is equals to minus x plus 7, it's very simple. Just put x equal to 0. You will get y is equal to 7. So this is the point. This is the one of the point on y-axis 0, comma 7. And again, if I put y is equal to 0, I will get x is equal to, you can see 0 is equal to minus x plus 7. So x is going to be 7 this time, right? So where is 7 on x-axis? So let me see that whether 7 is after 2 pi or before 2 pi. So we can use calculator. 2 pi is going to be, actually 2 pi is 6.28. So it's mean if x is 7, then it is away from after 2 pi. Okay, so we can say that 7 maybe lies over here. यहाँ हम कह सकते हैं कि there is my 7. So let's join these 2 points. Okay, बहुत मैटर कर रहा होता है कि ये लाइन कहाँ पे होगी. लेट्स सपोज एक बच्चा कहता है कि सर ये लाइन है. Now from this you can see that the line and the graph is intersecting at 3 points, but actually it's not like that. It's something like this. Okay, ये जो graph और line है वो how many points पे they are meeting? So at 5 number of points. Okay, so there are 5 solutions to the given equation. 5 number of solution. Next, 2 pi x minus 1. So again, 4 sine of 2x plus 3 is equals to 2 pi x minus 2 pi. So now how you will draw this line? This is also a line, okay, with a gradient 2 pi. So let me go to the graph and also write it with minus x plus 7. ये minus x plus 7 the graph है. Y is equals to 2 pi x minus 2 pi. Let's draw the graph of this one. So if I put x equal to 0, y is going to be negative 2 pi. So that is, I think, minus 6 point something, 85 था शायद 228 था. Next, if I put y is equal to 0, I will get x is equals to 1. Let me calculate it so that you can get easily that y-x is going to be 1. So 2 pi divided by 2 pi is 1 x. So x is going to be 1. अब 1 कहाँ पे होता है बच्चों? Where is this point? Minus 6.28. So I can see that if this is minus 1, okay, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and minus 6.28. So it will be over here. Let me ये dot. Okay, and where is 1? X equal to 1. It will be on the x axis. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? Now where is 1? Let me calculate what is pi by 2. So pi divided by 2 is 1.57. So if this is 1.57, so it will be over here almost. It will be over here. So what you will do, bacho, you will join these two dots. So clearly you can see that the line is actually 2 pi x minus 2 pi. Clearly you can see that line and the curve intersecting at only single point, right? So you will say number of solution is 1 number of solution. Okay, one solution only, which okay. Next we have, अच्छा देखिए बच्चों, इसमें कितने मार्क्स थे? 3 and 2, 5.
but a lot of concepts in this question, right? Again, the same argument, you don't need to write this. स्टेप्स नहीं होते ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कुछ नंबर मांग जब वो पूछ रहा होता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, just draw a line here, or even in your mind you can see that at how many number of points line and curve intersect, so that you can only tell them the number, either 2, 3, 4, 5. बट ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो लाइन के डायरेक्शन है दैट आल्सो मैटर्स, राइट. लुक एट क्वेश्चन 2. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -20 and the common difference is 5. So first term है -20, common difference है 5. Find the sum of the first 20 terms of the progression. So what was the formula? S20 is going to be 20 over 2, 2 times -20, 2a, plus n minus 1 into d, which is 20 minus 1, 19 times 5. Put everything in calculator. So 10 times -40 plus 19 times 5 is 550. Okay, बच्चों. Next, it is given that the sum of the first two k terms is 10 times the sum of the first k terms. Let me tell you that what is the definition of Sn. Okay, what is the definition of Sn? देखिए n बेस के अंदर है ना, तो you will say sum of first n terms. Okay, so its formula is n over 2, 2a plus n minus 1 times d. ठीक है बच्चों. अगर वो कह रहा है कि एस एन, तो वी आर राइटिंग हेयर एन एन. सो लेट्स से इफ दे आर सेइंग एस टू के, so if they are saying that sum of the first two k terms, so instead of n you will write 2k over 2 into 2a plus 2k minus 1 times d. This is how you will apply the formula, right? So 2 will be cancelled out, and k times what is a was -20, तो -40 आएगा आंसर, प्लस 2k minus 1, what was d was 5. So इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बट डू नॉट मल्टीप्लाई k इनसाइड. लेट मी टेल यू व्हाई. -20 -40 plus 10k minus 5. So this is going to be k into -40, -45 हो जाएगा ये, एंड प्लस 10k. ये है बच्चों आपका S2k. And what is now Sk? Sk is simply k over 2, 2a plus k minus 1 times d again. So k over 2 into -40, because a is -20, and then k minus 1, so 5k minus 5 because d is -5. So k over 2 into -45 again plus 5k. Okay, so as it was given that S2k is 10 times of Sk, 10 times of Sk. So what is S2k? S2k is k times -45 plus 10k. ये मैं यूज़ कर रहा हूँ S2k ऊपर वाली इक्वेशन से, एंड इज इक्वल्स टू 10 टाइम Sk क्या था, k over 2 into -45 plus 5k. तो यू कैन क्लियरली सी दैट k विल बी कैंसल आउट ऑन बोथ साइड. दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि आपने k अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना. ओके, नेक्स्ट वी हैव that the 2 will also be cancelled out, so -45 plus 10k is equal to 5 times -45 plus 5k. ठीक है, तो bring everything on the other side. So 10k, अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं कर लेता. -45 plus 10k is equals to 45 times 5 is going to be 225. So -45 plus 225
is equals to 25 minus 10 is going to be 15. So 225 minus 45 divided by 15. So k is going to be 12. K is going to be 12. Okay? Each and every step is mentioned clearly. The equation of a curve is y is equals to 2x square minus 3. The points A and B with coordinates 2 and with x coordinate 2 and 2 plus h respectively lie on the curve. Okay? Find and simplify an expression for the gradient of the chord AB in terms of h. देखें बच्चों, अगेन ये क्वाड्रेटिक कर्व दी हुई है, ठीक है। आप एक रफ सा एक आइडिया भी लगाएं तो दैट विल बी बिकॉज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो इट्स फेस विल बी अपवर्ड, राइट। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हेयर वी हैव लेट्स से a point A with a coordinate 2 comma unknown, y is unknown, and 2 comma unknown, and again 2 प्लस h कॉमा अननोन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका आप ग्रेडियंट फाइंड करें ए बी का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम y वैल्यूज़ निकालेंगे। तो y वैल्यू पहली क्या आएगी, 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 3, सो 4 8 5, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट आया 2 कोमा 5 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी y is equals to 2 into 2 plus h square minus 3. This time I'm not calculating, so let's write formula for the gradient. भी वहीं पे कैंसिल हो जाए, let's see क्या होता है। so फार्मूला क्या होता है, y2 minus y1 over x2 minus x1. so y2 क्या था आपके पास, दिस इज माई y2 बच्चों, ठीक है। आपको आइडिया होगा, दिस विल बी रिटन ओवर हेयर। सो ये मेरा y2 है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 प्लस एच होल स्क्वेयर, इवन आप इसको ओपन भी कर सकते हैं बट आई एम नॉट डूइंग इट। ये क्या हो गया, बस ठीक है। माइनस y1 क्या था, y1 था आपका 5 डिवाइडेड बाई x2 क्या था 2 प्लस एच माइनस x1 क्या था 2। सो दिस विल बी कैंसल आउट। तो ये आपके पास बच्चों आएगा m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एच। Find and simplify an expression for the gradient of the chord AB in terms of h. वो कह रहा है simplify भी करें तो we have to open it, okay? So यहाँ पे open करें इसको, 2 into a square, तो 4 plus 4h plus h square minus 8 whole divided by h. So 8 plus 8h plus h plus 2h square minus 8 divided by h. 8 will be cancelled out, so 8h plus 2h square over h. So just take h common from the numerator and cancel out with denominator. You will get 8 plus 2h. ये बच्चों मेरा ग्रेडियंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब कॉर्ड क्या कह रहा है, कॉर्ड उसने कहा था इसे वो कॉर्ड कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जरा ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये ले लें, ठीक है बच्चों। ये मैंने किसी वजह से पॉइंट को थोड़ा सा चेंज किया, आपको पता चलेगा। आपको कॉर्ड नज़र नहीं आ रही थी ना, नाउ यू कैन क्लियरली सी द कॉर्ड, ठीक है। ए कैन बी एनीवेयर, डजंट मैटर। Look at the second part. Explain how the gradient of the curve at the point A can be deduced from the answer to part A
एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेडियंट। बच्चों ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, बेसिकली कॉन्सेप्ट पूछा गया है और ये कई बच्चों को पिक ही नहीं हुआ। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट ए कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द आंसर टू पार्ट ए एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेडियंट। लेट मी टेल यू बच्चों कि वो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हम एक काम करते हैं कि बिकॉज अच्छा लेट्स ब्रिंग इट ओवर हेयर बिकॉज वो आपको समझ आ गया। ठीक है ना, इवन ग्राफ वॉज नॉट नीडेड, बट आप मुझे देखेंगे मैं हर क्वेश्चन में ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन पिक हो। ठीक है ना, नाउ वी हैव दिस ग्राफ। ठीक है, we have the gradient of this AB, and now they are saying कि what could be the gradient of the curve at this point। ठीक है, तो इसके पीछे बच्चों क्या है, इसके पीछे है बैक एंड पे we have x axis and y axis। okay, so here we have the x coordinate, this is बच्चों my 2, and here we have the second x coordinate, this is students, this is 2 plus h। ओके, सो ये डिस्टेंस क्या है सारा, ये है आपका बेसिकली h। यहां मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि यहां से यहां तक दिस इज माय h। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस कर्व का इस पॉइंट पे, तो ग्रेडियंट जो कर्व का ग्रेडियंट होगा इस पॉइंट पे दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक है ना, कर्व का ग्रेडियंट एट स्पेसिफिक पॉइंट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। दोबारा सुने, अगर आपने ग्राफ कर्व का टेंजेंट फाइंड सॉरी ग्रेडियंट फाइंड करना है कर्व का, तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब इमेजिन करें कि ये वाली लाइन तो टेंजेंट तो नहीं है, ये तो सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है, जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, बट ये तो टेंजेंट नहीं है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को टेंजेंट बनाना है। तो क्या मैं करूंगा, देखें इस बी को ना आप एक टूवर्ड्स ए मूव करें। ठीक है, बेसिकली ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कम करें। अभी डिस्टेंस कितना है, एच है ना, तो ए को फिक्स करें, बी को ए की तरफ मूव करें, तो क्या होगा, बी विल बी ओवर हेयर, ये टेंजेंट बनेगा। इसमें जूम कर लेते हैं, बी इफ बी इज हेयर तो ये सीकेंड बनेगा, इफ बी इज हेयर तो ये सीकेंड बनेगा। अच्छा, इवेंचुअली देखें नीचे क्या हो रहा होगा, नीचे बच्चों आपका एज कम होता जा रहा है। पहले एज इतना ज्यादा था, अब एज क्या हुआ, ये हुआ, अब एज क्या हुआ, ये हुआ। इवेंचुअली चले एक मैं और बता देता हूं, इवेंचुअली क्या होगा, ये देखें नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, इवेंचुअली ये बी की पोजीशन थी, ये ए की, फिर बी की थी, ये बी की थी, ये बी की थी, बट एवरी टाइम माई एज वॉज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, एज इतना डिक्रीज हो चुका होगा कि एज 0 हो चुका होगा। दैट इज वाई जो आपको सीकेंट नजर आ रहा है दैट विल लुक्स लाइक दिस एंड इट बिकेम टेंजेंट एट ए एंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ दैट कर्व एट पॉइंट ए। ओके, सिंपल सी बात थी कि एज व्हेन एज इज 0 देन द ग्रेडियंट ऑफ दैट कर्व इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल इज दैट, एच आपने 0 पुट करना था अबव कर्व में। ठीक है, अबव जो आंसर आया है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट बच्चों क्या था, मैं इसको रेज नहीं कर रहा, ग्रेडियंट था मेरा 8 प्लस 2h। सो एज h goes to 0, as h goes to 0, gradient of curve at a is equals to 8 plus 2 into 0 which is 8 and this is actually the, याद रखिएगा, टेंजेंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। जो ग्राफ जो कर्व का ग्रेडियंट होता है बच्चों किसी भी पॉइंट पे, दैट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। Find the term independent of x in the expansion of each of the following cases. Right, बच्चों?
So what you will do now, you will find the term independent of x in the expansion. As I said कि आप दो टर्म्स ओपन कर लिया करें, बाकी टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। सो पहली टर्म आएगी 6 कॉम्बिनेशन 0, 6 चूज 0, x रेज टू पावर 6 and 3 over x square raised to power 0. Okay, so if you look at it, so I will have x square in the answer. Next term is going to be 6 choose 1, so x raised to power 5 and 3 over x square raised to power 1. So in this term we will get x raised to power 5 और ये x square है, power 1 है, तो this is going to be x cube. ओके, अच्छा ऊपर x की पावर 6 थी, मैंने स्क्वायर क्यों लिखा भाई, ये 6 थी। तो स्टूडेंट्स क्लियरली यू कैन सी पहली पावर थी 6, नेक्स्ट पावर थी 3, अब इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 3 का, सो द नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी x रेज़्ड टू पावर 0, वही हमें रिक्वायर्ड है, राइट। तो वही हमें रिक्वायर्ड टर्म थी, सो लेट मी राइट दैट टर्म ओवर हियर। तो होगी 6 चूज 2, x raised to power 4 and 3 over x square raised to power 2. 6 choose 2, 6 choose 2 is 15, 3 raised to power 2 is going to be 9 हो जाएगा, और x की पावर 4 over x की पावर 4 will go, ठीक है। So 15 times 9 is going to be 135, right बच्चों। So this is the term independent of x in the first part. अब in the second part, अच्छा देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट तो है सेकंड पार्ट पे, लेकिन जो बाइनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं। अब जो पहला उसने आपको करवाया है ना, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये वाले टर्म्स वहां पे रिक्वायर्ड हों, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, लेट्स राइट 4x क्यूब माइनस 5 इंटू x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर की रेज टू पावर 6। अच्छा देखिए ज़रा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है बच्चों, ये ऑलरेडी गिवन है, दिस वन कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, ओके। अब वो कहता है कि इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ x आए। अब खुद सोचें, देखें 4x क्यूब है, इसने मल्टीप्लाई यहाँ पे होना है, तो मैं लिखता हूँ 4x क्यूब ने मल्टीप्लाई होके x की पावर 0 कब देगा, ठीक है, तभी देगा जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर एक्स क्यूब के साथ, मीन्स टू से x की पावर -3 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये है x की पावर -3, ठीक है। तो ये कब आपको x की पावर 0 देगा, व्हेन इट विल मल्टीप्लाइड विद x रेज टू पावर -3 या 1 ओवर x3, राइट। एक मिनट रुक जाए, फिर ये 5 किस टर्म से मल्टीप्लाई होकर विदाउट x देगा, ऑब्वियस ही बात है वो ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई होके देगा x की पावर 0, ठीक है। तो हमें दो टर्म्स चाहिए प्रीवियस पार्ट से, एक चाहिए x की पावर 0 जो कि मैंने फाइंड कर लिया है, दैट इज 135, और एक मुझे चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर x क्यूब। तो बच्चों बहुत सिंपल है, ये देखें, ये x की पावर 6 है, ये x की पावर 3 है, और ये x की पावर क्या है 0 है। एज आई सेड कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में पावर काम हो रही होती हैं, ठीक है। और इससे अगली टर्म क्या होगी, x रेज टू पावर 0 माइनस 3 इज -3, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट टर्म फर्स्ट। सो होगी 6 चूज 3, x रेज टू पावर 3 एंड 3 ओवर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर। आप एक काम करें, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं ना, आप 8-10 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करें विदाउट डूइंग दिस डायरेक्ट, आप सारी एक्सपेंशन ओपन कर दें, फिर आप देखें हर टर्म को ना एक ट्रेंड फॉलो कर रही होती हैं। तो बेसिकली आप 8-10 क्वेश्चन सारा सारा एक्सपेंड करके करो, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 3 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 3 अगेन। सो 6 चूज 3 क्या होता है 20, और ये होगा जी आपका 27, और here we have x raised to power 3, ठीक है।
तो देन वी हैव 20 टाइम्स 27 इज गोइंग टू बी 480। अच्छा ये क्या हो गया है, 20 टाइम 27 540, तो 540। नाउ लेट्स राइट 4x क्यूब माइनस 5 इंटू 150। एक ये टर्म थी ना, सॉरी 135 थी, 135 थी विदाउट एक्स वाली प्रीवियस टर्म में से, और एक्स 1/x³ वाली टर्म कौन सी थी, प्लस 540 वाली। नाउ आई विल डू इट 4x³ टाइम दिस टर्म 5 टाइम दिस टर्म, सो 4x³ इंटू बाकी मल्टीप्लीकेशन छोड़ दें बिकॉज हमें तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, हमें जस्ट रिक्वायर्ड टर्म्स जो है मैं वही टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कैंसिल भी नहीं करते, ये ना हो बच्चे कुछ प्रिंट भी कर लेते हैं तो फिर उनको सही नज़र नहीं आएगा। -5 टाइम 135 तो 1485, तो ये आता है बच्चों 1485, राइट। सो पहले का आंसर था आपके पास 135, सेकंड का था आपके पास 1485। व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इसको आप रैशनल फंक्शन कहते हैं। व्हेन यू हैव अ पोलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड अ पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, देन दिस फंक्शन इज नोन एज अ रैशनल फंक्शन। ओके, सो the function f is defined by f of x equal to 2x plus 1 over x 2x minus 1 for x is less than 1 over 2. Actually, the domain of the function is given with it. Okay, the domain of the function is x is less than 1 over 2. State the value of f of minus 1. I don't know ये क्यों पूछा इन्होंने। So this is going to be -1 in the numerator and this is going to be -3 in the denominator. So 1 over 3 is the answer, right? Next we have bacho. Here we have the next part. The diagram shows the graph of y is equal to f of x. Sketch the graph of y is equals to f inverse of x on this diagram, on the same diagram. Show any relevant mirror line. So हमने प्रीवियस पेपर के अंदर किया था। देखिए बच्चों, ये कंसेक्टिव आया क्वेश्चन, ठीक है, 1-1 में भी था और ये 1-2 में भी है, सॉरी। सो अगर आपने किसी इनवर्स फंक्शन को ग्राफ करना हो सेम ग्राफ के ऊपर, तो आपने क्या करना होता है, ओरिजिनल फंक्शन को आप रिफ्लेक्ट कर देते हो y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड, ठीक है, और मिरर लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स। एक बात आपने सोचनी है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है, ठीक है। तो देखें, हम यहां ड्रॉ करते हैं, डोमेन बच्चों क्या है इस फंक्शन की, x इज लेस देन 1 over 2। रेंज क्या है, इफ यू लुक एट द ग्राफ, इफ यू लुक एट द ग्राफ बच्चों, रेंज होती है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन y एक्सिस, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि दिस ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। अब एक बच्चा कहता है कि सर ये 1 है और ये ग्राफ, एक स्टूडेंट कहता है सर ये ग्राफ ना 1 के करीब होता जाएगा बट इट नेवर टचेस द 1। सो वी विल से दैट इट्स रेंज इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज यहाँ तो है ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल एंड पे जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है 1 से लेस, और 1 कभी भी होगा नहीं, ठीक है, 1 कभी भी नहीं होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है सर ये 1 है लेकिन मुझे लग रहा है ये 2 तक जाएगा। तो स्टूडेंट कहता है सर ये 2 है, तो वो कहता है y लेस देन 2। थर्ड स्टूडेंट में थिंक ऑफ कि सर ना ये 1 है ना ये 2 है, ये ग्राफ बेसिकली यूं जा रहा है, लाइक हम इसको बना रहे हैं कि ये ऐसे आगे जाता 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 ऊपर जाएगा, ठीक है, टर्न तो नहीं होगा लेकिन ये इस मोटिवेशन के साथ जा सकता है कि इट विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी इन द वाई एक्सिस टर्म। तो हाउ टू आंसर दिस पार्ट कि इसने 1 पे स्टॉप होना है, 2 पे स्टॉप होना है, या इट विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बच्चों रैशनल फंक्शन में इस तरह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस फंक्शन को आप गौर से देखें,
you will see that the coefficient the power of x in the denominator and numerator are both same. ठीक है, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, तो बच्चों गौर से सुनना है रेंज क्या होती है। रेंज आपने निकालनी है एसिम्पटोट से। एसिम्पटोट क्या होता है, ये क्वेश्चन वैसे आपको आना चाहिए, एसिम्पटोट वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपने ऐसे निकालना है बच्चों, y इज इक्वल्स टू, ऊपर से भी x का कोएफिशिएंट उठाना है 2 ग्रेटेस्ट पावर का, ठीक है, और नीचे से भी कोएफिशिएंट उठाना है 2, तो आंसर आएगा 2/1, 2/2 विच इज 1। तो बेसिकली हुआ पता है क्या हुआ, ये कि दिस इज माय 1 and this graph is just approaching 1, it will never exceed 1, so that's why its range is going to be, let me write, its range is always less than 1, right? अच्छा, अब ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया ना। लेट्स सपोज अगर ये यूं होता, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/3, चले 4 कर लेते हैं, 4x² प्लस या -1 ही कर दे, डजेंट मैटर, कॉन्स्टेंट डजेंट मैटर। नाउ लुक एट द पावर्स, हियर वी हैव x की पावर 1 और डिनोमिनेटर के अंदर है x की पावर 2, ठीक है। तो आपने पता करना क्या है, इट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 0, ऑल्दो कि आपने ये नहीं कहना कि सर ये ग्राफ, क्योंकि इस दिस ग्राफ इज नथिंग टू, दिस ग्राफ हैज नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। ये मैंने खुद से एग्जांपल दी है। तो जब भी नीचे वाली पावर ज्यादा होती है, हमेशा y इज इक्वल टू 0 उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब है ग्राफ अप्रोचेस दैट लाइन, ओके। और द थर्ड केस इज अगर पावर ऊपर ज़्यादा आ जाए, थोड़ा सा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, और किसी को समझ नहीं आया तो मैं आपको एक प्रॉपर इसका एक छोटे से नोट्स दे सकता हूँ, 1 2 पेजेस के। बट ये रैशनल फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इन कमिंग ईयर्स में, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ऊपर पावर ज़्यादा हो और नीचे पावर कम हो, एज आई सेड कांस्टेंट डजेंट मैटर, ओके, 2 3 4 कुछ भी हो, सो 4x -1। तो बच्चों आपने याद रखना है y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट्स सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ, ये वो वाला स्टूडेंट है जो ये सोच रहा था कि ये ग्राफ इट विल गो अप, तो वो ये केस है। अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो, अगर नीचे पावर ज़्यादा हो, तो y इज इक्वल टू 0 हमेशा याद रख लें। लेकिन जब पावर ऊपर नीचे सेम होती है, लाइक इन अवर क्वेश्चन, तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर से भी कोएफिशिएंट उठा लेना है, नीचे से भी कोएफिशिएंट उठा लेना है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ अगर 4 होता, टू 2x, चले 2x² प्लस 1/4x² प्लस 3 होता, तो बच्चों इसमें होता, ऊपर से कोएफिशिएंट उठाते हैं 2, नीचे से उठाते 4, तो 1/2, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती, तो इसकी रेंज लेस देन दैट होती, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट आ गया, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते। अब इतना मुझे समझ आ गया है that this graph is going towards 1 but never touches it, okay। Similarly this graph is going towards what, ये देखिए ना, डोमेन क्या थी 1/2, तो ये बेसिकली डोमेन थी आपकी 1/2, यहां पे मैं लिख देता हूं 1/2, ये है बच्चों आपकी 1/2 एंड ग्राफ इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, ओके। एंड सिमिलरली हम इधर ही बना देते हैं y इज इक्वल टू 1, ये है आपकी y इज इक्वल टू 1, इसके साथ लिखते हैं y इज इक्वल टू 1, इसके साथ लिखते हैं x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब वो कह रहा है आप मिरर लाइन बनाएं, और मिरर लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू x, तो इट विल पासिस थ्रू 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है बच्चों। ये है आपकी मिरर लाइन, आपने इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है टुवर्ड्स दिस लाइन, ठीक है, इन दिस लाइन। रिफ्लेक्शन कैसे होगी, रिफ्लेक्शन ऐसे होगी बच्चों कि आपने देखें, पहले ये 1 पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अब ये वहां पे जाएगा 1 पे, मतलब इसका ये वाला फेस 1 पे जाएगा, और यहाँ पे ही जा रहा है 1/2 पे, तो इसका ये वाला फर्स्ट रिफ्लेक्ट होके उधर 1/2 पे जाएगा। तो आई होप यू गेट इट। तो मैं इसको बनाता हूँ अब,
लेट्स सी कि कर्व बनता है, आई पैड हमारा साथ देता है या नहीं देता। यस, बन गया, लेकिन चलें। नो। तो स्टूडेंट हम बस ठीक है ऐसे बना लेते हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बनाई थी। तो अब हम क्या करते हैं, ये ये है बच्चों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व, रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो वो आप दोबारा बना दे भाई, वो तो रेज ही करनी ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस टाइम दिस पार्ट इज गोइंग टूवर्ड्स 1/2। पहले था 1/1 पे, अब ये 1/2 पे जा रहा है, और ये जा रहा था 1/2 पे, अब ये जा रहा है 1 पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, ग्राफ था ही नहीं, बट हमने बना भी दिया, चल अच्छी बात है। एंड नाउ लेट्स फाइंड एफ इनवर्स बच्चों। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-1। सो आप इसको इक्वेट करें। अच्छा, डोमेन क्या होगी बता। डोमेन हम निकालते हैं, ग्राफ से निकालेंगे। अच्छा हुआ ग्राफ बना दिए। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x+1 ओवर 2x-1। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 2xy minus y is equal to 2x+1. So now let's combine x value terms. So 2xy minus 2x is going to be 1 plus y. So if I make x subject, तो ये बनेगा 1 plus y divided by 2y minus 2। तो ये है बच्चों मेरा इनवर्स, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। आपको पता है y को बाद में x में कन्वर्ट भी करना होता है, राइट? नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो बच्चों आप सबको पता है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज गोइंग टू बी रेंज ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज गोइंग टू बी रेंज ऑफ एफ। अभी मैंने क्यों बताया था? अच्छा सॉरी बच्चों, मुझसे वो पार्ट मिक्स हो गए थे। स्केच एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑन द डायग्राम, शो एनी रेलिवेंट मिरर लाइन। हाँ सॉरी, ये जो स्केच है वो करना था, मैंने बाद में भूल ही गया। एनीवे, रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ग्राफ के अंदर आप देखें, एज आई सेड के जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी रेंज क्या है, ये देखें, वन से लेस, वन से लेस, इट विल नेवर टचेस वन, राइट? सो यहाँ आप लिखें कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, अगेन आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है? तो जो उसकी रेंज थी वो क्या थी? x इज़ लेस देन 1। अब मुझे बताएं, डोमेन लिखना है तो आपने x लिखना है, ठीक है? डोमेन वेरिएबल होते ही x है, और ये लेस देन y, लेस देन 1 कहाँ से है? बिकॉज रेंज ऑफ f ऑफ x क्या थी? y लेस देन 1। बट हमने y लेस देन 1 यहाँ नहीं लिखना, बिकॉज जब डोमेन आप f इनवर्स की लिख रहे हैं तो आप हमेशा x लिखेंगे। सो दैट इज द बच्चों डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, राइट? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, the function g is defined by g of x is equals to 3x plus 2 for all values of x. Solve the equation। तो हम f of x यहाँ पे लिखते हैं। f of x क्या था? 2x plus 1 over 2x minus 1। 2x plus 1 over 2x minus 1। So f of 1 over 2 क्या आएगा? Sorry, 1 over 4 है। f of 1 over 4 is going to be
2/4 plus 1 divided by 2/4 minus 1. So that is going to be 3/2 ऊपर आएगा and -1/2 नीचे आएगा, तो आंसर आएगा बच्चों -3। ठीक है, सो नाउ वी हैव g ऑफ f 1/4। तो g के अंदर रखें -3 को, तो ये आपके पास आएगा 3 टाइम्स -3 प्लस 2, सो दैट इज गोइंग टू बी -7। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर दें एफ ऑफ एक्स के साथ। तो एफ ऑफ एक्स क्या था आपका 2x + 1 ओवर 2x - 1 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2x + 1 इज इक्वल टू -14x + 7। So that is going to be 16x is equals to 6. So x is going to be 6/16. So that is going to be 3/8. ठीक है, so that is my value of x, solution of the above equation. Look at the beauty of this question, बच्चों. Multiple sectors are connected to make a plate OABCDEF consisting of the sectors of two circles each with center O. The radii of sectors AOB and EOF are r and the r centimeter and the radius of the sector COD is 2r. Means कि जो छोटा सेक्टर है उसका रेडियस r है and the bigger one has radius 2r. Angle of the small sector is theta. Both have theta angles, and the angle of the large sector is 2 theta, twice of that. It is given that the perimeter of the plate is 4 centimeter and the area of the plate is 10 cm square. Furthermore, r is greater than 1.5 and theta is less than 3/4. Find the values of r and theta. बच्चों देखो, हमारे पास जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, r + r, 2r, ये भी r है। ठीक है, तो r + r + r + r, so that will become 4r, and then these two arcs will give you the perimeter. So my perimeter of this shape is going to be, let's write perimeter is equals to 4r, r + r + r, and then plus this arc length. So what is this arc length? Let me write over here. L is equal to r theta. So r theta plus r theta is 2r theta. Plus, what is this arc length? L is equal to r theta. But here we have r, bada wala radius 2r, and angle, the bigger angle, that is 2 theta. So the answer is 4r theta. ठीक है बच्चों, सो ये बनेगा आपके पास 4r + 6r theta, and I hope there is no any mistake. सो पहला आपके पास आएगा 14 is equal to 4r + 6r theta. Let's divide it by 2 so that it may be simplified. Okay, 7 is equal to 2r + 3r theta. This is my equation number 1. And what is the area of this whole complete shape? एरिया कैसे निकालोगे? दो सेक्टर्स के एरिया को बड़े वाले सेक्टर के एरिया में ऐड करेंगे, दैट विल बी अवर एरिया। तो अब एरिया निकालते हैं बच्चों, आएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों? बिकॉज स्मॉल सेक्टर्स आर 2 टाइम हाफ r² थीटा, सो r² थीटा, ओके, and plus 1/2 r². What is the radius of the large sector? That is 2r, इसका square. And what is the angle there? Angle is 2 theta. तो ये बच्चों क्या आएगा? So 2 will be cancel out. So this is r² theta plus
2 will be cancel out. So 2 square will be 4 r square theta. तो आंसर आएगा 5 r square theta। और एरिया बच्चों मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से r square theta की वैल्यू बच्चों आएगी 2। Let's call it equation number 2. Okay. So from here, स्टूडेंट्स दीज आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। आप इक्वेशन नंबर 2 में से थीटा की वैल्यू निकाल लें या आर की वैल्यू निकाल लें। अब आर की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगी। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज गोइंग टू बी 2 over r square. Put it in the above equation. So 7 is equal to 2r plus 3r into 2 over r square. R will be cancelled out. So 7 is equal to 2r plus 6 over r. So let's multiply whole equation with r. So 7r is equals to 2r square plus 6. So 2r square minus 7r plus 6 equal to 0. Students, please use quadratic formula in finding r. Okay, do not take any risk in your life. Okay. So r is equals to minus into minus 7 plus minus b square minus 7 square minus 4 times a times 6 whole divided by 2 into 2. एक बार आपने लिखना है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर यूज करना है। सो हेयर वी हैव द कैलकुलेटर। 2 minus 7 6 ही था, r था 3 over 2 and 2। एक है आपके पास 3 over 2 और एक है 2। क्लियरली यू कैन सी दैट r कैन नेवर बी 3/2 बिकॉज वो कह रहा था कि r 3/2 से बड़ा है। सो ओनली वैल्यू ऑफ r यू आर कंसिडरिंग दिस टाइम इज r इज इक्वल टू 2 ओनली। बच्चों प्लीज कोई बॉक्स वगैरह बना दिया करें ताकि आंसर स्पेसिफाइड हो जाए। ठीक है, अगर आपका आंसर ठीक है तो, कॉन्फिडेंट है अगर आप तो ठीक है। अब आप ये वाली वैल्यू r की पुट करोगे, कहाँ पुट करें? over here. Wherever you put, the answer will be same. Even आप यहाँ भी put कर सकते हैं r की वैल्यू, you will get the same answer for theta. So अच्छा सॉरी, आगे पेज भी है, हमें पता ही नहीं है। तो थीटा क्या था बच्चों? थीटा इज इक्वल्स टू 2 over r square. 2 over r square. So theta is going to be 2 over 2 square. So theta is going to be 1 over 2 which is 0.5. ठीक है। Next we have question number 7. स्टूडेंट सिंपली आपने इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो we will not waste our time. Okay, let's write 4, क्या हो गया, 4 का 2 का स्क्वायर 4 and then plus 11. So minus 2 into x minus 2 square plus 8 plus 11. So minus 2 into x minus 2 square plus 19. ठीक है बच्चों, तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा? 2,19। ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है, x minus x square plus b. So my vertex of this quadratic curve is 2,19. Next we have the diagram shows part of the equation. ठीक है, find the area. तो बच्चों फॉर एरिया एज आई सेड कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ना वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया करें। तो ये एक वर्टिकल लाइन आएगी, एक ये वर्टिकल लाइन आएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो आप क्या करेंगे? कर्व के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करेंगे। लाइन का तो खैर ट्रेपीजियम का एरिया है, बट वी विल नॉट ट्रेपीजियम वाला एरिया, वी विल यूज इंटीग्रल टेक्निक्स।
अब मेरे पास ना ये पॉइंट्स नहीं है, मसला ये आ रहा है। अब ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये हम निकालेंगे बाय इक्वेटिंग क्वाड्रेटिक कर्व एंड द लाइन। सो -2x² plus 8x plus 11 is equals to 8x plus 9. So -2x square, what? 8x is cancel out. So 11 minus 9 is plus 2 equal to 0. So minus x square plus 1 equal to 0. So बड़ा interesting आ गई equation. X square is equal to 1. So x is going to be plus minus 1. So this is बच्चों -1, this is +1, right? So area आप निकालोगे -1 to 1, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू, कर्व की इक्वेशन में से लाइन की इक्वेशन आप माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा -2x² प्लस 8x प्लस 11 माइनस लाइन की इक्वेशन विच इज 8x प्लस 9 था, तो आप करोगे 8x प्लस 9, ठीक है। कर्व में से लाइन आपने सब्ट्रैक्ट करनी है टू फाइंड दैट ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2x² 8x minus 8x gone 11 minus 9 is plus 2। तो इसको इंटीग्रेट करें बच्चों, क्या आता है -2x³/3 plus 2x, ओके, यू डोंट नीड टू ऐड एनी कांस्टेंट, तो 1 पुट किया तो -2/3 plus 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 2/3 -2, right? So -2/3 -2/3 is -4/3, and then this is +4. So 12 minus 4 is going to be 8/3, ठीक है बच्चों। So this is my area। The equation of a circle is this। बच्चों बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। The equation of a circle is x² plus y² plus px plus 2y plus q is equal to 0. Express the equation in a completing square form where a is to be given in terms of p and r square is to be given in terms of p and q both। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों, अगर आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर अच्छा नहीं है तो आपसे बहुत से क्वेश्चंस नहीं होने वाले, ठीक है। क्वाड्रेटिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर पेपर के अंदर हम 2-3 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2-3 बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, 2-3 बार हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये होगा x² प्लस px प्लस y² प्लस 2y प्लस q। आप लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, ठीक है, x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, y वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें। सो ये क्या होगा, ये होगा x प्लस, मैंने क्या बताया था, x का कोएफिशिएंट क्या है p, सो p डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ओके। फिर इसी का स्क्वायर आपने बाहर सब्ट्रैक्ट भी करना है, सो p/2 का स्क्वायर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट आउटसाइड द ब्रैकेट, प्लस y प्लस 1 का whole square because 2 divided by 2 which is 1, okay students, p/2 here and 2/2 here which is 1, and you have to subtract square of this number which is p/4 and square of 1 which is 1, so you will subtract both numbers outside the bracket। so ये आपके पास आएगा x minus p/2 square plus y minus -1 square is equal to, bring 1 on the other side, 1 plus p²/4 minus q। तो बच्चों लेट्स कंपेयर a with this, b with that and r² with this, ठीक है, दैट्स इट।
और तो कुछ नहीं था ना इसमें. यस, द लाइन विद इक्वेशन दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए 4,3. सो अगेन मैं हर क्वेश्चन में ग्राफ खुद से बना लेता हूं. ठीक है, लेट्स से ए इज ओवर हेयर. हम सपोज करते हैं कि दिस इज ओवर 4,3 इज ए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें. दिस इज द टेंजेंट, राइट, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेंजेंट. तो वाई जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है बच्चों एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से y को बनाए सब्जेक्ट, तो वो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 10. सो y इज माइनस 1/2x प्लस 10/2 विच इज़ 5. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है माइनस 1/2. इधर लिख देता हूँ मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या आएगा बच्चों, सिंपली 2 आएगा. नॉर्मल होता क्या है, the line which is perpendicular to the tangent and obviously it will definitely passes through the origin. ओके बच्चों, जो भी टेंजेंट लाइन होती है सर्कल के ऊपर एंड द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड दैट टेंजेंट इज 90. ठीक है, एंड इट विल पासेस थ्रू द ओरिजिन एनीवे. तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. So y minus 3 is equals to m is 2, the gradient of the normal, and then x minus x1 was 4. So y minus 3 is equals to 2x minus 8. So y is equals to 2x minus 8 plus 3 is minus 5. So this is my equation of normal. Right? Find the values of P and Q for 5 marks. देखें स्टूडेंट्स, what is the center of the circle? If I ask you कि जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, तो लेट्स राइट ओवर हेयर. ये जो सेंटर था लेट्स डिनोटेड बाय सी. इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे, ए कोमा बी होंगे ना. सेंटर विल बी ए कोमा बी. सो व्हाट वाज माय ए, व्हाट वाज माय बी. ए क्या था, ए था ये, एंड ए वाज माइनस पी बाय 2. व्हाट वाज माय बी, बी वाज माइनस 1. तो माइनस पी ओवर 2 माइनस 1, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. अब नाउ यू कैन सी बच्चों कि जो ये सेंटर है दैट आल्सो लाइज ऑन नॉर्मल लाइन. तो व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन सम लाइन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस पॉइंट इन दैट लाइन. दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन सम कर्व और सम लाइन, you can put that point directly in that curve or in that line simply. अब आगे क्या होता है doesn't matter, देखते हैं. So C is minus P over 2 minus 1, this is the center, and Y is equals to 2x minus 5, this is the normal. Center lies on normal. So put x and y in this normal line, the points of the center. Minus 1 is equal to 2 into minus p over 2. Minus 5, 2 will be cancelled out. So minus 1 plus 5 is equals to minus p. So p minus p is equal to 4. So p is equals to negative 4. तो ये है बच्चों मेरा p की वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द रेडियस. अब देखें एक और बात सुने जरा. सेंटर दोबारा लिखें यहां पे. सेंटर क्या है, माइनस पी ओवर 2 माइनस 1. तो ये क्या आएगा, p क्या था आपका, माइनस इंटू माइनस 4 ओवर 2 माइनस 1.
तो ये 4/2 इज 2 कॉमा -1। ये है बच्चों आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और पॉइंट ए क्या था, 4,3। सो लेट्स राइट रेडियस। रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट। तो रेडियस क्या आएगा, 4 - 2 स्क्वायर प्लस 3 -1 स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 दैट इज √20। तो ये है बच्चों r। व्हेन आई टेक r स्क्वायर सो दिस इज 20। r स्क्वायर 20 के इक्वल आ गया, बट r है, r स्क्वायर था क्या, r स्क्वायर था, ये देखें बच्चों, r स्क्वायर, बिकॉज ही हैज टोल्ड अस के r स्क्वायर किसके इक्वल है, इस पूरी वैल्यू के इक्वल है ना। if you compare both equations, the right hand, whatever on the right hand side is r square, okay, so this is my r square, 1 plus p square over 4 minus q, r square is 1 plus p over 4, क्या था, p square over 4 minus q था, p square over 4 minus q, yes, that's it, you have r square, you have p, let's find q. So 20 is equals to 1 plus p was -4, तो -4 square over 4 minus q, so ये क्या आएगा, 20 minus 1 is going to be 19, 4 square 16 over 4 again 4, so bring it on the left side, so q is going to be -15. Q is going to be -15. Moving towards next question. The equation of a curve is this and the equation of the line is this, where k and p are constants with k lies between 0 and 1. It is given that one of the points of intersection of the curve and the line has coordinates this. Find the values of k and p and find the coordinates of the other points of intersection. Okay, let's write equation of the curve. This point is the point of intersection of the line and the curve. By the way, this curve is a quadratic curve. बच्चों आपने परेशान नहीं होना. This is a simple quadratic curve. Okay, so its face will be upward because the leading coefficient is positive. और ये line है और ये curve है. When they will intersect, one of the point of intersection is given and the other one is question mark. This is the question. Okay, ये question है कि एक point of intersection दिया हुआ है, दूसरा you have to find. अच्छा, point of intersection जो होता है, that point lies both on line and the curve, but I'm using this point in that curve, तो क्या होगा, 1/2 is equals to 1/2 k square, x क्या था 5/2 square minus 2 k, x क्या था 5/2 minus 2, wait, ये मैंने I think I wrote -2kx for 2 times, so it was just 1 time plus 2. So यहाँ पे इसको बच्चों k के लिए solve करें. This is simply a quadratic equation. So this will become 0 is equals to half या k square 25, एक मिनट रुक जाए, 25 k square 2 square 4 over into 2 is 8 and then minus 5k, 2 minus 1/2 is going to be 3/2. Okay, या तो ऐसी डील कर लें, इससे सॉल्व कर लें, या तो मल्टीप्लाई इट विद 8 टू गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, सो मैं ये करने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन को वाइड करते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई इट विद 8, यू विल गेट 25k square
Okay, so minus 40k. Okay, so 2 times 4 12, 2 times 8 and then 4 times 3. तो ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. So let's write quadratic formula here. एक बार आपने लाजमी लिखना है. नाउ यूज कैलकुलेटर. तो ये है 25 minus 40 12. First value is 2 divided by 5. The next is 6 over 5. As we know that k lies between 0 and 1. K can never exceed 1, but 6 over 5 is more than 1. Okay, so only value of k which you are choosing is k is going to be 2 over 5, but please write only with it. ठीक है बच्चों, मेरे पास k तो आ गया. Now I will find p. Okay, so how do I find p now? देखें बच्चों, ये वाली k की वैल्यू आप पुट करोगे इधर, पॉइंट आप ये वाला पुट करोगे इधर x की जगह पे और y की जगह पे, यू कैन इजीली गेट p. सो लेट्स डू दैट. सो पॉइंट हम लिखते हैं लाइन y इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस पी. सो y क्या था आपका 1/2 इज इक्वल टू k क्या था 2/5 इंटू x क्या था 5/2 प्लस p. k was 2/5. टू ओवर 5 इंटू एक्स क्या था जी 5/2 प्लस पी एंड y was 1/2. ठीक है, सो 5/2 एंड 2/5 विल बी कैंसल आउट. यहाँ हम कैंसिल नहीं कर सकते, वो सब कुछ ही जी लगेगा. 1/2 is equal to 1 plus p. So p is going to be 1/2 minus 1 is minus 1/2. तो ये है बच्चों आपका p. Now you have to find the point of intersection of the other point of intersection. For point of intersection, you know what you have to do. You just need to put both equations equal and then you will solve for x. ये मुझे देख के डर लग रहा है, इतनी अजीब सी इक्वेशन है. तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप लोग? y is equals to half. Let's put them equal. Y is equals to half k square x square minus 2kx minus 2kx plus 2 is equals to k क्या था? k था आपके पास 2/5. तो मैं लिख देता हूँ 2/5 का स्क्वायर भी लेना है बाद में, माइनस 2 इंटू के क्या था आपका, ये आई थिंक हमने ऊपर पुट भी किया था कहीं पे. नो, के था आपके पास 2/5 इंटू एक्स प्लस 2. तो ये आप मैक्सिमम कैलकुलेटर यूज़ करें. इधर क्यों आ गया? अच्छा, मैक्सिमम बच्चों आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो 2 स्क्वायर 4/2 इज़ 2. ऊपर तो आएगा 2/25. कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आपने कमेंट के अंदर बताना है. माइनस 4/5x प्लस 2. वट आई नो के ये आपकी कर्व बनेगी. अब लाइन लिखते हैं. लाइन क्या थी? के एक्स प्लस पी. तो के था आपके पास 2/5x प्लस पी क्या था माइनस 1/2. लेट्स इक्वेट देम. 2/25x स्क्वायर minus 4/5x plus 2 is equals to 2/5x minus 1/2. ये है जी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो let's bring it on the left side. So minus 4 over 5 minus 2 over 5 is minus 6 over 5, and 2 plus 1 over 2 is going to be 5 over 2 is equal to 0. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. जैसी इक्वेशन बन रही है, डोंट नो द आंसर इज, आंसर ठीक देगी भी या नहीं, बट लेट्स सी. बच्चों मैं बताया ना कि आपने सॉल्व करनी नहीं है, यू जस्ट नीड टू शो दैम इन क्वाड्रेटिक फार्मूला. उसके बाद कैलकुलेटर जाने और एग्जामिनर जाने. तो फ्रैक्शन से घबराया ना करें, ठीक है. चलें अब देखें कैलकुलेटर कैसे करते हैं इसको. कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे सबसे पहले 2 डिवाइड बाई 25, ओके, minus 6 over 5 equal, okay, 5 over 2, press equal, then press equal, you will get first value of x is 5 over 2, press one more time equal, you will get x is equals to, नीचे ऊपर क्यों ना लिख रहे हैं, x is going to be 25 over 2 और x is equal to 5 over 2. ठीक है बच्चों. तो एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 5 over 2 और दूसरा हमारे पास आ गया 25 over 2. ओके, अब हमने y भी फाइंड करना है. ठीक है बच्चों. तो y फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आइदर इन लाइन वाली और कर्व वाली, बट आई एम गोइंग टू पुट इट इन द लाइन वाली इक्वेशन. सो लाइन वाली क्या थी बच्चों, 2 over 5x minus 1 over 2. 2 over 5x minus 1 over 2. So y is going to be 2 over 5, x is, x क्या था 25 over 2 and minus 1 over 2. So that is going to be 25 over 5. 5 2 is 10 minus 1 is 9 over 2. तो बच्चों जो पॉइंट बनेगा इसमें स्टेप्स मुश्किल नहीं है, बट चीज़ें कनेक्ट करना मुश्किल है कि पहले आपने P निकाला, फिर K निकाला, फिर आपने दोनों को इक्वेट किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला. तो ये बेसिकली कैलकुलेशन तो इजी थी, बट इस कैलकुलेशन को याद रखना कि व्हाट विल बी द सूटेबल स्टेप्स, कि आपने कैसे फॉलो करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. उसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. It is given that it is given instead that the line and the curve do not intersect. Do not intersect का मतलब जब भी क्वाड्रेटिक और लाइन हो और do not intersect हो, तो everyone know कि इसके पीछे कौन सी स्टोरी चल रही है, b square minus 4ac less than 0 वाली. ओके, तो आप क्या करेंगे. अच्छा बच्चों, एक आपने केयर करनी है. देखें जो k है ना, k आपने विदाउट डूइंग एनीथिंग निकाल लिया था. लाइक आई विल अगेन यूज दिस वैल्यू ऑफ k इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज आपने सिंपली पॉइंट पुट किया था ना उस कर्व के अंदर. लेकिन p जो था, p उसने कहा था कि थोड़ा सा हमने स्ट्रगल की थी निकालते हुए ना. ठीक है, तो अब k तो हम वही यूज करेंगे, और k हम वो यूज करेंगे तो जब हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी थी k की वैल्यू पुट करने के बाद. ये बच्चों मैं इसको नीचे लिख देता हूं. ये मेरे पास y की वैल्यू है आफ्टर यूजिंग वैल्यू ऑफ k, और y इज इक्वल टू, दूसरी क्या थी लाइन की इक्वेशन, के एक्स प्लस पी. तो 2 over 5x प्लस p मैं वो नहीं यूज़ करूँगा, 2 over 5x प्लस p. अब हम फाइंड करेंगे p.
और पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं कि लाइन और कर्व आपस में मीट नहीं करती, ठीक है। तो के हम वही यूज कर रहे हैं। पी के लिए वी आर गोइंग टू मेक अनदर इनइक्वालिटी। तो 2/25 एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्यों ना हम इसको चले देखते हैं, +2 इज इक्वल्स टू 2/5 एक्स प्लस पी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्योंकि कैलकुलेटर में तो पुट नहीं कर सकते, तो अगर हमने 25 और 5 से जान छुड़ानी है तो लेट्स मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 25, वी विल गेट रिड ऑफ 25 इन द डिनोमिनेटर, राइट। डू वन मोर थिंग, एक मिनट आप पहले चलें, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से। तो ये आएगा 2x², 25 इंटू 4/5 इज गोइंग टू बी 20, 25 टाइम 2 is 50, 25 टाइम 5 2s are 10 प्लस 25p। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई किया है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे 2x² माइनस 30x प्लस 50 माइनस 25p इक्वल टू 0। अब करेंगे जी b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b क्या था आपका, -30² माइनस 4a क्या है 2, और c कितना है 50 माइनस 25p लेस देन 0। तो दिस इज 900 माइनस ये होगा जी आपका 400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज गोइंग टू बी 8, 25s are 200। ठीक है बच्चों, तो p² कहाँ गया भाई, अच्छा ये तो बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो ये होगा सीधा सीधा 900 माइनस 400 इज 500। तो इसको उधर शिफ्ट कर दें या क्या क्या करेंगे आप लोग, प्लस 200t लेस देन 0। सो 200p, आई होप आपको पता होगा इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, तो मैं उसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि आपको बताऊं, बट इस केस के अंदर नहीं होगी बिकॉज वो 200 पॉजिटिव कोएफिशिएंट है ना, व्हेन यू विल डिवाइड इट ऑन द अदर साइड तो ऐसी रहेगी, कैंसिल नहीं करते, बिकॉज जब बच्चे प्रिंट करते हैं पेपर को तो वो फिर ख़राब हो जाता है काम सारा। ठीक है बच्चों, तो ये है जी p लेस देन -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। A function with domain x greater than 0 is such that its derivative is given. It is given that the curve with equation this passes through the origin. Find the equation of the normal to the curve at the point 1, 0. Sorry, not the origin, at 1, 0. So you know that tangent gradient is actually, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं थोड़ी, अब MT stands for gradient of tangent is equals to derivative is given बच्चों, f prime is given, so it's mean the gradient of the curve is given, so just put this point in that curve, in that derivative to get the gradient of tangent. So 8 into 2 minus, ठीक है आप समझ लोगे, 2 minus 3 1/3 एंड -10। अच्छा इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन एक आ गई है आपको बताने वाली, 2/3, 2 minus 3 इज -1। अब -1 की पावर 1/3 मुझे तो पता है, बट मैं आपके सामने लिखता हूँ कैलकुलेटर से ताकि आपको ये देखें, -1 रेज टू पावर 1/3। ओके, सो दिस इज -8 and then -10, 1 raised to power 2/3, please do it using calculator, so you will again get 1, so -18। so जो नॉर्मल की ग्रेडियंट होएगी वो होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1/18
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बनेगा बच्चों 18y इज इक्वल्स टू x माइनस वन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Find f of x for 4 marks. Okay, you know that if you want to find f of x from f prime of x, what you will do, you actually integrate the derivative to come to the original curve. So हम directly इसको integrate करते हैं, either you mention it or not, but just do it directly. So 8 2x माइनस, चलें एक बार मैं लिख देता हूँ, मुझे डाउट होता है कि फिर बच्चों को पिक नहीं होती बात, हम इसको लिख देते हैं। ये मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। Okay, if you want to integrate it, just integrate the whole thing or term by term, they are the same things. Okay, so 8 into 2x minus 3 की पावर 1/3, तो 1 ऐड करें इसके अंदर, 2x minus 3 की पावर 1/3 plus 1 is going to be 4/3, right, divided by 4/3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज 2 minus 10 x की पावर 2/3 plus 1, that is going to be 3 plus 2 5/3 divided by 5/3 plus constant of integration। ऐड करना है बिकॉज हम एरिया नहीं फाइंड कर रहे, कर्व फाइंड कर रहे हैं। यू हैव टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ना हो ये ऐड ना करें बस ये आंसर लिख दें, गलत हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 ऊपर जाएगा, 4 2s are 8 विल बी कैंसल आउट। सो ये आपके पास कुछ आंसर इस तरह का आ रहा है, एंड अगेन 5 2s are 10, सो दिस इज -6। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एक्स नाउ? देखिए भाई, ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब है भाई x, y, एंड यू नो दैट x, f of x, बिकॉज y हो या f of x हो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 पुट करूँगा f of x की जगह पे, 1 पुट करूँगा x की जगह पे, बट डू इट प्लीज शॉर्टली। कैसे देखें ज़रा, 1 पुट करें इधर, नंबर कितने हैं, 4 है, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं बच्चों। 1 पुट करें इधर, 2 इंटू 1 2 -3 -1 रेज टू पावर, ओ वाओ, ये करने वाली बात है बच्चों, क्योंकि ये ना हो फिर आपको, आई एम सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 -3, यस, ये -1 नहीं आएगा, प्लस सी। बच्चों देखें -1 की पावर 4/3, कैलकुलेटर से देखें ये 1 आएगा। हाँ हाँ, ये बात बतानी थी मैंने। एक स्टूडेंट करता है -1 ऐसे, पावर लिखता है 4/3, ऑब्वियसली बात है -1 आएगा, क्यों कि उसने ब्रैकेट नहीं डाली हुई, कैलकुलेटर इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। तो कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करवाना है तो यू हैव टू यूज़ ब्रैकेट्स बच्चों। एक ब्रैकेट यहाँ लगाएं, एक ब्रैकेट यहाँ लगाएं, अब चेक करें 1 आ रहा है, ये बात मैंने बतानी थी आपको। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू, प्लीज़ ब्रैकेट्स यूज़ किया करें, 0 इज इक्वल टू 3 -6 प्लस c, so 3 - 6 is -3, so on the other side will become 3। तो एफ ऑफ एक्स आ गया, करना क्या था, अच्छा पुट करें उसके ऊपर, 3 इंटू 2x -3 होल पावर 4/3 -6x की पावर 5/3 प्लस 3। सो ये है जी मेरी इक्वेशन ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स, राइट, दैट्स इट। ओह, वी हैव वन मोर पार्ट। It is given, students, it's given that the equation f prime of x is equal to 0 can be expressed in the form of this. Determine, making your reasoning clear, whether f is an increasing function, a decreasing function, or neither. देखें बच्चों, f इंक्रीजिंग कब होता है,
जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेडियंट पॉजिटिव हो, ऐसे करूँ, अच्छा, एनीवे, ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ग्रेडियंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ना फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, राइट। अब आई डोंट नो, खैर इट हैज़ सम रीज़न दैट वाई डिड दे राइट दिस इन दैट फॉर्म, बट हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट मी राइट एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर हेयर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स मैं नीचे कर कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ, 8 × 2x - 3 की पावर 1/3, 8 × 2x - 3 की पावर 1/3, and then -10 टाइम x रेज टू पावर 2/3, -10 टाइम्स x रेज टू पावर 2/3। बच्चों एक बात नोट करें ज़रा, जो आपका फंक्शन है ना, उसकी डोमेन है x ग्रेटर देन 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे मेंशन करें x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू उस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें। अगर ये डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वी विल से दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वी विल से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर ये आंसर इक्वल टू 0 आता है तो वी विल से दैट फंक्शन इज नीदर, ओके। सो take x any value greater than 0, so let's take it 2 or 1 or anything. So f prime x, या x को 2 भी रख सकते हैं, is equals to 8 into 4 - 3 which is, हम एक बार पुट चलिए करवा देता हूँ सारा। बच्चों you can use any value greater than 0, okay, even you can put 1। तो कुछ मेंटल मैथ, कुछ कैलकुलेटर। 4 2 4 - 3 1, 1 raised to power 3, 1/3 is 1, so this is just 8 minus, अब ये मुझे नहीं पता, खैर एनी वेस सारा कैलकुलेटर में डालते हैं डायरेक्ट। रेज इट फ्रॉम हेयर, 8 minus 10 times 2 raised to power 2 divided by 3। अजीब सा आंसर है, बट इतना आपको पता चल गया कि फाइनल आंसर -7.87। हमें जस्ट ये देखना था कि आइदर आंसर इज पॉजिटिव, व्हाट आंसर, ग्रेडियंट, डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर ग्रेडियंट। इफ ग्रेडियंट इज नेगेटिव, बच्चों अगर किसी कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव हो, ठीक है, ये देखें, दिस टाइप ऑफ कर्व इज दिस, ठीक है ना, ये देखें भाई, ये अब ये ग्रेडियंट जो टेंजेंट है वो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है। When f prime of x is negative means its gradient is negative. So you can see that curve is going downward. So that's it. Function is in decreasing. Okay. अच्छा बच्चों, जब ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो ग्रेडियंट को ही ना डिक्रीजिंग कह देना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। दे आर डिफरेंट थिंग्स। व्हेन डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ओके। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, that's it बच्चों, the end। Inshallah, in the next video, in the next class, we are going to study October November 2024 paper 1-3। Okay students, Allah Hafiz।